Hello dear students, you are with ETUS Academy. In the last class we have done the basics of differentiation. Today we will be talking about their applications in physics, right? How do we apply them in physics? I think one problem we have done, but let us elaborate it more so that the things will be clear in our mind. Okay. To start with, I must say that our general formula was d by dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. This was our general formula. On the basis of this, we will be trying to do some applications. Let us see the type 1 application. In this case, let us say that displacement time relation is given as t is equal to under root x minus 1. This is the displacement time equation given to you. Okay. And what they want is find velocity at t is equal to 2 seconds and acceleration at t is equal to say 3 seconds. This is the basic question. The displacement time relation is given to you, time and displacement relation. We have to find the velocity and the acceleration at this intervals, right? As we know that to find the velocity we must differentiate the displacement. So we know that v is equal to what? Dx by dt, right? In this case we must differentiate the displacement to get the velocity. Now this equation is a content of t and x. So we first summarize it like this, that under root x will be equal to t plus 1. Then you squaring it both sides, we get x is equal to t square plus 2t plus 1. This was our displacement equation. We squared it, we found the value of x. Now we will substitute this value of x in this equation, right? So we will write d upon dt of t square plus 2t plus 1. This is the value of x that we have substituted here. Now to differentiate this, we have got three terms. This term will be 2t, this term will be 2, and differentiation of 1 with respect to any time, this is a constant, so we will get 0. So we have got the velocity is equal to 2t plus 2. Now check that we have to find the velocity at interval of 2 seconds. So we will substitute this t is equal to 2 seconds here. So we will write v at t is equal to 2 seconds will be equal to 2 into, substitute this value of t here, this is 2 into 2 plus 2, this is 4 plus 6, and this total equal to 6. Okay. This is the velocity we have found. Now let us find the acceleration also. To find the acceleration again, we know acceleration is dv by dt. And we have the velocity equation related to time, this one. So we will substitute this velocity here. So we will be substituting d by dt of 2t plus 2. Differential of this will be 2, differential of this will be 0. Clear? So the acceleration is equal to 2 units. This is also in units. This is the way to solve the question related to differentiation. Clear? Now let us do some other problem of different kind also. We will start. Now as you can see that we are applying the things of the previous class actually, so that
you will very clearly catch into your mind that whatever we have taught in the previous class, we are just applying that in this way, right? Suppose we say another question, consider that this is a xy plane. Let us say this is a xy plane, okay? And consider a body is moving like this. This is the direction of motion. Right. Now you see, at any time t, the body has covered so much of displacement along x-axis and simultaneously so much of displacement along y-axis. Right? And you can see that x और y दोनों same नहीं है. That means x is also varying with time, y is also varying with time, but they are not varying in the equal manner. Right? So suppose a question is x is equal to 3t square plus 2t minus 1 and y equal to 4t minus 3. Suppose this is the displacement time equation given to you. And he wants that find velocity at t is equal to say 2 seconds. Now in this case हमारे पास अब दो इक्वेशन है, एक x एक्सिस वाली टाइम के रिलेटेड, एक y एक्सिस वाली भी टाइम के रिलेटेड. अब हमसे उसने कहा है कि वेलोसिटी इस बॉडी की बताइए जब टाइम 2 सेकंड हो गई है. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली देखिए जो x वाली चीज है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आएगी, और जो y एक्सिस वाली चीज है जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ जाएगी. तो लेट अस डू इट. नाउ Vx will be, this is velocity along x axis, और इसको हम कैसे लिखें, this you will write dx upon dt, and the value of x that we have given here 3t square plus 2t minus 1, इसको अब हम यहाँ substitute कर दें. So this is d by dt of 3t square plus 2t minus 1, right? Now we differentiate it. The first term will be, this 3 will go outside, 3 will go outside, and we'll write इस तरह से लिखिए. Second term will be, this 2 will go outside and write d by dt of t, and the third term will be minus d by dt of 1. Differential of this constant will be equal to 0. इसको छोड़ दीजिए. t square will be 2t. So this is 6t, and this is d by dt of t is 1, so this is equal to 2. Then we have got the velocity equation at 6t plus 2. अब हमें velocity कब चाहिए, जब टाइम कितनी हो 2 सेकेंड. तो हम पुट कर दें velocity को, तो vx at t is equal to 2 जब हम पुट करेंगे तो t के बदले में 2 पुट करिए, 6 into 2 plus 2. So this is 12 plus 2 and this equals 14 units. This is velocity along x-axis. Clear? Now we will similarly find velocity along y-axis. How to find that? We'll see. I am just rubbing it out. Okay? See. Now similarly Vy will be velocity along y-axis. Velocity along y-axis we will write dy by dt, and y we have is 4t minus 3. We will substitute it here. So this is d by dt of 4t minus 3. Differential of 4t will be 4 and differential of 3 will be 0. So this is equal to 4. This is 4 and Vy we had 14, right? So now we can see that the Vx part was 14 and the Vy part is only 4. This is Vy. Vy is equal to 4. We have two different velocity associated with this body. तो अब अगर हम इन दोनों की रिजल्टेंट निकाल दें पाइथागोरस यूज करके सिंपली, तो दिस v will be what? This v will be
this vx square plus this vy square. So this is vx square and vy square under the root. Substitute this value here. So v is equal to under root of vx is 14 square and this is 4 square. Clear? So we can solve it. This is 196 plus 16 and we'll calculate it total. That will be the total answer. Clear? This is how we do the problem related to differentiation. Right? Now let us go to some other part also. Consider that one more equation is given to you as x equals to 3t cube minus 2t square plus 4. 3t cube minus 2t square plus 4. And what they want is find velocity when acceleration is equal to 0. This is what they want. Now अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग किस्म की है. पहले हमें क्या दिया होता था, एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देते थे और वो कहते थे वेलोसिटी निकालिए टी टाइम पे या एक्सेलरेशन निकालिए टी टाइम पे. अब वो कह रहे हैं वेलोसिटी तब निकालिए जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0. तो हम इसको क्या करें कि देखिए हमें ये देखना है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है, जब एक्सेलरेशन 0 हो. इसका मतलब हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक बार जब हम करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक और बार जब हम करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी. राइट? तो हम पहले स्टेप्स से शुरू कर देते हैं. तो अगर हम वेलोसिटी निकालें, हम कैसे कहें इसको, वेलोसिटी विल बी dx by dt. क्लियर? अगर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट आप करते हैं तो दिस इज d by dt ऑफ 3t क्यूब minus 2t plus 4. To differentiate this, this will be equal to 9t square minus 2. This is the velocity. Clear? Now this is the velocity. Let us say this is equation number 1. You again differentiate it. So a will be what? dv by dt. So this will be d by dt of 9t square minus 2. क्लियर? पहले देखिए, पहले क्या किया हमने, पहले वेलोसिटी निकाल ली, उसकी इक्वेशन ये है. अब एक्सेलरेशन निकालें तो वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करें. तो जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 18t minus 2. दिस इज एक्सेलरेशन. नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन इक्वेशन 2. क्लियर? नाउ रीड द क्वेश्चन. नाउ they are saying that you have to find the velocity when the acceleration is 0. So let us make the acceleration is 0. So to do that, what we will do is we will just substitute according to question acceleration is equal to 0, and the acceleration part we have found is 18t minus 2. So this is 18t minus 2 will be equal to 0. From here t is equal to 2 upon 18, that is equal to 1 upon 9. So we have got the value of t as 1 upon 9. Clear? That means at this time the acceleration was 0. And the question says आप velocity तभी निकालिए जब acceleration क्या हो, 0. यानी वो 0 कब हुई, जब t कितनी थी, 1/9. तो हम अब सिंपली वेलोसिटी वाली इक्वेशन में t की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 9 into 1/9 square minus 2. So this is equal to 9 upon 81 minus 2. So this is equal to 1/9 minus 2. And then you take 9 LCM, 1 minus 18. So this is minus 17 upon 9. This much is the final answer. This is another part. मतलब इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया कि दो बार डिफरेंशिएट करके दो इक्वेशन निकाल लिए और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन वाली पार्ट को हमने जीरो कर दी और एक्सेलरेशन वाली पार्ट को जीरो करके टी की वैल्यू निकाली और उस टी की वैल्यू को पुट करके हमने वेलोसिटी निकाल दी. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू सम अदर पार्ट आल्सो. इसको हम रब आउट कर देते हैं. आइए
अब देखिए डिफरेंशिएशन, आई एम श्योर दैट आपको अब आ गई है, तो मैं थोड़ा सा अब आपको और एक अलग चीज सिखाऊं। अब एक दूसरी चीज जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, दैट विल बी द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी फंक्शन को या किसी चीज की चेंज किसी दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में निकाले, इसको हम क्या कह रहे थे, डिफरेंशिएशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट की चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में आपने निकाला तो आपने क्या बोला, वो हो गई वेलोसिटी। इसी तरह वेलोसिटी की चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने निकाला तो आपने क्या कह दिया, एक्सेलरेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या है कि एक छोटी सी स्पेस की हमें सपोज डिटेल पता है और हमें उसकी एक टोटल लेंथ की जानकारी चाहिए, एक टोटल पार्ट की जानकारी चाहिए, तो हम उसको कह देते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। कैसे इंटीग्रेट करें, देखिए इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल नोटेशन आप याद रखें, जनरल नोटेशंस आर लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस, वट एवर इट मे बी। अब देखिए इसको कैसे पढ़े हम, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह आप इसको पढ़िए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इसी तरह आप इसको पढ़िए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, राइट। इसको कैसे पढ़े, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, दिस इज जनरल नोटेशन। अब जनरल फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे यूज करें, देखिए तो जनरल फॉर्मूला में हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसको कैसे पढ़िए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। और जनरल फॉर्मूला क्या कहती है कि आप इसको लिखें x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, पावर को आगे ले जाते थे और इसकी पावर को एक कम कर देते थे। यहां हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पावर को हम पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब पावर को डिवाइड कर रहे हैं और एक बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये आपकी जनरल फॉर्मूला होगी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि बेटा t की पावर 3dt का इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या कहें, आप कहें कि ये हो गई t की पावर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1, so this becomes t to the power 4 divided by 4, right. This is the way how we handle the equation of integration. अब इसको एक और फॉर्मूले, हम एक और क्वेश्चन ले लें सो दैट आपको थोड़ा माइंड में और क्लियर हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम अगर आपसे बात करें कि सपोज अंडर रूट ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करना है हमें, मान लीजिए एक ये क्वेश्चन हमने ले लिया। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो इरेशनल क्वांटिटी है, लास्ट लेक्चर में हमने बोली थी, जो इरेशनल क्वांटिटी है उसको पहले आप रिमूव करिए और पावर के फॉर्म में कर दीजिए। तो कैसे करें, हम इसको बोलेंगे x टू द पावर 1/2 dx इंटीग्रल। अब देखिए इसकी शक्ल हमारी जनरल फॉर्मूला से मिलती जुलती हो गई, तो अब जनरल फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। किस तरह करिए, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, so this becomes x to the power 3/2 divided by 3/2, and finally this will become 2/3 x to the power 3/2. Clear? This is how we do the integration in a basic form. मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको करा देता हूं। जो इंटीग्रेशन मैं अब आपको सिखा रहा हूं या अब आप तब सीखेंगे जब आप 12th क्लास में होंगे, पर मैं आपको सिर्फ उसके एप्लीकेशन बता रहा हूं कि किस तरह से आप जनरल साइंस में, फिजिक्स में, कैलकुलेशन में उसके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आइए अब देखिए कि हम थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था, वी न्यू वेलोसिटी इज dx by dt, राइट। हमने बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो अब इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए, देखिए इसको ऐसे बोलिए dx इज इक्वल टू हाउ मच,
अगर इस dx को निकालना है तो इस dt को यहां ले जाएं, क्या लिखे v इंटू डी टी। क्लियर। अब देखिए इधर की तरफ dx है और इधर की तरफ v dt है, तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम इसको ऐसे लिख दें इंटीग्रल एंड दिस इज लाइक दिस। हमने क्या किया, दोनों तरफ की इंटीग्रल साइन लगा दी। अब ये कितनी हो गई x, राइट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये आ गया x, और ये कितनी आ गई आपके पास, इंटीग्रल ऑफ v dt। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या करें, इंटीग्रेट करें। जैसे आपको मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब उल्टा कर दो कि अगर वेलोसिटी की इक्वेशन आपको गिवन है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। क्लियर। सिमिलरली विल से कि A इज इक्वल टू dv by dt, this is A. Now what is dv? dv is equal to A into dt. क्लियर। नाउ इसको दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसको आप ऐसे लिख दें इंटीग्रल dv, इसको आप ऐसे लिख दें इंटीग्रल a dt। नाउ यू कैन सी यहां से क्या मिला आपको v, यहां से क्या मिला इंटीग्रल a dt। अब आप देखिए कि जब आपको एक्सीलरेशन की इक्वेशन गिवन थी और आपको वेलोसिटी चाहिए थी तो आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया। ये दो बातें आप याद रखें, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन चाहिए तो भी हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें। लेकिन अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, उल्टा चाहिए, तो हम इंटीग्रेट करें। इसी तरह वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो भी हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। क्लियर। आइए हम आपको थोड़े से क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं सो दैट आपको पता चले कि आपने क्या किया और जो भी आपने सीखा है उसको बहुत ईज मैनर में अप्लाई करने की कोशिश करिए सो दैट आप कंफर्टेबल रहेंगे। और जब आप कंफर्टेबल रहेंगे आई कैन टेल यू कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू जस्ट कीप वेरी काम एंड सी दैट। देखिए सपोज मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी टाइम रिलेशन of a body is v is equal to 3t square minus 4t. Suppose this is the velocity time relationship, right? What they want is find displacement at t is equal to 2 seconds. Suppose this is the equation. मतलब आपको हमने वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन दी और हम चाहते हैं आपसे डिस्प्लेसमेंट बताइए जब टाइम कितनी थी, 2 सेकंड की थी। इसका मतलब मैं वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट आपसे मांग रहा हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस वेलोसिटी को एज इट इज आप क्या लिख दें, इसको आप लिखिए dx by dt, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3t square minus 4t। तो यहां से बच्चे dx कितना आ गया, dx आ गया देखिए दो पार्ट में, एक पार्ट तो ये वाली हो गई, दिस इज 3t square dt माइनस 4t dt, दो पार्ट आ गए। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी आप लिखिए इंटीग्रल dx, इधर 3 को बाहर ले जाइए, लिखिए इंटीग्रल्स t स्क्वायर dt, माइनस 4 को बाहर ले जाइए, लिखिए इंटीग्रल t dt। क्लियर। अब इसको आगे कैसे किया जाए, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx को क्या कहेंगे हम, इज इक्वल टू x, 3 बाहर थी हमारे पास, 3 को बाहर रहने दीजिए। t स्क्वायर dt को आप कैसे लिखें, t टू पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, n + 1 बाई n + 1, एंड माइनस 4 t की पावर 1 dt है, चेक करिए t dt का मतलब क्या, t की पावर 1 dt, तो हम इसको क्या लिखें, t की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1। क्लियर। सो दिस बिकम्स 3/2 t³ माइनस
This is 4/2, so this is 2t square. This is the displacement equation now available to us, right? हमने क्या किया कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल दी। अब इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करिए, बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो therefore according to question, displacement at t is equal to 2 second will be equal to 3/2 into t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू is 2 cube minus 2 and 2 square. So this becomes 3/2 into this is 8, right? Minus 2 into this is 4. So this becomes, this is cancel, we get 4, 3 4s are 12 and 2 4s are 8. So 12 minus 8 is 4 units. And this is the final answer. This is how we have to incorporate integration part in the physics. Clear? आइए एक क्वेश्चन हम अब और ले लेते हैं, सो दैट उससे आपको थोड़ा और पता चले कि किस तरह से किया जाना चाहिए। और उसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली जो मैंने आपको सिखाया आप उसी को यूज करेंगे और यूज करके आप पता करेंगे कि क्या चीज हमने सीखी है जिसको हमें ठीक से अप्लाई करना आना चाहिए। सपोजिंग मैं आपसे कहूं कि एक्सीलरेशन इज 4t³ - 3। सपोज एक इक्वेशन आपके पास, इसमें आपको क्या गिवन है कि एक्सेलरेशन रिलेटेड टू टाइम किस तरह है, 4t³ - 3, और आपसे वो कह रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। सपोज इस तरह की कोई बात है हमारे पास। अब इसको हम यूज कैसे करें, देखिए अब से फिर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी मांग रहा है, यानी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आप सिंपली पहले क्या करें, a को क्या लिख दें, dv/dt। दिस इज इक्वल टू 4t³ - 3। a को हमने क्या लिख दिया, dv/dt, और बाकी जो चीज ऐसी थी जो जैसी थी उसको हमने वैसे ही रखा, उसको कुछ नहीं चेंज किया। अब ये dv कितनी हो गई आपके पास, दिस इज 4t³ dt - 3dt। मतलब ये जो dt थी हमारे पास लेफ्ट हैंड में, हमने उसको राइट साइड में लाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसको लिखें इंटीग्रल dv, यहां 4 को बाहर ले जाएं और लिखें इंटीग्रल 3t³ dt - 3 को बाहर ले जाइए, लिखें इंटीग्रल dt, राइट। तो dv की इंटीग्रल क्या हो गई आपके पास, v। 4 एज इट इज बाहर थी, आपने बाहर रखी। t³ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, t³ 3+1/3+1, दैट मीन्स 4/4, ओके, -3 dt का इंटीग्रल क्या हो गया, t, मतलब इंटीग्रल डिफरेंशियल कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन आ गई जिसमें से 4 आपने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली अब आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू t⁴ - 3t। क्लियर। अब हमें वेलोसिटी कब चाहिए, जब t कितना हो, 1 सेकेंड। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1⁴ - 3 into 1. So this becomes 1 - 3 and you get -2 units. -2 units का क्या मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम इधर की तरफ ले रहे थे तो एक्चुअली बॉडी तब इधर की तरफ जा रही थी। इट मींस -2 का यह मतलब नहीं कि वेलोसिटी 0 से कम है, बल्कि इसकी डायरेक्शन उल्टी है, जिधर हम ले रहे थे उसका उल्टे डायरेक्शन में। क्लियर। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम की रिलेशनशिप गिवन थी, हमने उससे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन ऑब्टेन करी और वेलोसिटी वाली इक्वेशन में जो हमें मिली थी उसमें t की वैल्यू पुट कर दी और उससे हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब ये -2 का ये सिंपली मतलब होता है कि अगर हम इनिशियल डायरेक्शन ये सोच रहे थे सपोज, तो जब बॉडी का टाइम कितना है, जब t = 1 सेकेंड है तो बॉडी इधर की तरफ जा रही थी, ये वेलोसिटी की नेगेटिव डायरेक्शन है, ऐसे समझना चाहिए आपको, ना कि ये समझना चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो 0 से कम है। क्लियर। तो देखिए हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन
ऑल द मोस्ट जितनी आपको जरूरत है मैंने वो सब कुछ कवर किया आपके साथ। और मैं ये चाहता हूं आपसे कि आप इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप उसको आपके बुकलेट में आपके पास और भी कुछ स्टडी मटेरियल है आप उससे ट्राई करें, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम। इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दो आपने बहुत छोटी एज में ये सीखी है, बट आपको मैंने उस लेवल से कराया है कि आपको आगे के लिए कोई दिक्कत ना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग another part of this. Thank you so much.